Okay, so let us start today's session with more numericals. Today also we are going to solve examples only. Consider a closely wound 1000-turn coil. So in the given data, you directly have 1000 turns, मतलब n equal to 1000 दिया है, having radius of 1 meter. So the coil has 1000 turn and the radius of each turn is 1 meter. If a current of 10 ampere passes through the coil, so you have current of 10 ampere passing through the coil, what will be the magnitude of magnetic field at the center? You are supposed to find out what is the value of B. अगर आपको याद होगा, हमने मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट सिचुएशंस में फॉर्मूला डिराइव किया है. You had a long straight wire, magnetic field at a perpendicular distance r was given by mu 0 by 4 pi 2 I by r. मैंने आपको बताया था इसमें और कॉइल में एक ही डिफरेंस है. फॉर द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर यू विल फाइंड देयर इज नो पाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला पता होने चाहिए. तो यू नीड टू नो फॉर्मूला. मैग्नेटिक फील्ड at the center is mu 0 2 I by 4 r, मतलब mu 0 by 2 I by r. But you have n number of turns, so this need to be multiplied by n. तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तो you have a formula, you just have to put values and solve. तो आपको मिलेगा b equal to n which is 1000, मतलब 10 power 3. So I will write in terms of 10 का power because that is more easy to calculate. 10 का power 3. Mu 0 by 4 pi was 10 power minus 7. मतलब mu 0 will be pi. See, mu 0 by 4 pi was 10 power minus 7. मतलब mu 0 will be 4 pi into 10 power minus 7. So you will have here mu 0 की जगह पे आप लिखोगे 4 pi into 10 power minus 7 by 2 by 2. Current 10, R is 1. 1 जा and 2 जा. So by the way, 10 power 3 or 1, 4 or minus 7, मतलब minus 3. Correct? 2 pi. What is pi value? Pi, not 1 by pi. 3.14 into 2, 6.28. Pi की वैल्यू 3.14 into 2, मतलब 6.28 into 10 power minus 3 Tesla. क्योंकि magnetic field is measured either in Gauss, but all the parameters given to you are SI unit. इसलिए you will be writing here Tesla. Done. This is how you are supposed to solve this question. खत्म. Next question. A coaxial cable. I hope you know what is coaxial cable. आपके घर में जो पहले केबल कनेक्शंस आते थे, उसमें अगर आप उसको ओपन करके देखोगे तो अंदर एक वायर होता है कोर, उसके बाद इंसुलेशन होता है, उसके ऊपर और एक वायर होता है. इसका मतलब you have two wires having the same axis. So you have a core inside. तो ऐसा कुछ होता है वो. You have a wire inside, then there is some insulation. So you have another wire with the same axis. That is coaxial cable. Wire insulation इसके ऊपर वापस से wire. That is coaxial. क्योंकि दोनों वायर का मतलब इसके बाहर इसके ऊपर जो वायर है, I will draw another wire so that you understand in a better way. So you have another wire over here, a thin layer over here. इन दोनों का वायर का एक्सिस इज द सेम. तो पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज कोएक्सियल केबल. एंड बाय द वे, cables that we use in day to day life normally has circular cross section. तो जब आप उसको कट करोगे परपेंडिकुलरली तो you will see circles. तो यहाँ पे डायग्राम दिखाया है आपको. What is this? I'll explain you later. Okay.
तो आपको बोला है कि आपके पास एक कोएक्सियल केबल है विच कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कंडक्टिंग कोर। तो ये जो अंदर का पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज सेंट्रल कंडक्टिंग कोर। तो यू हैव अ सेंट्रल कंडक्टिंग कोर समवेयर ओवर हियर। तो assume this is that central wire, more or less like this. Okay, then and a coaxial cylindrical outer conductor. This is solid cylinder, right? और उसके बाद उसके ऊपर a coaxial cylindrical outer conductor of radius b। तो उसके बाहर और एक कंडक्टर है बट दिस इज हॉलो सिलेंडर। कोर इज सॉलिड एंड उसके बाहर का जो दूसरा केबल था दैट इज हॉलो सिलेंडर। ओके, द टू कंडक्टर्स carry an equal current I but in opposite direction in and out of the plane of paper। कोर से अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है एंड यू नो हाउ टू डिनोट बाय अ डॉट। डॉट मीन्स कमिंग आउट and cross means going in। So you have current which is coming out from the core and cross matlab it is going in, inside। So here it is going inside। Okay, आगे बोला है what will be the magnitude of magnetic field for three cases। तो आपको B फाइंड करना है for case number 1। case number 1 are, do you remember magnetic field फाइंड करने के लिए हम एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं। एम्पियर्स लॉ में हम एम्पिरियन लूप इमेजिन करते हैं। उस एम्पिरियन लूप का रेडियस हमने लिया था आर। तो यहाँ पे जो ये आर बोला है एग्जैक्टली ये एम्पिरियन लूप का रेडियस बताया है, राइट। तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इफ द रेडियस ऑफ एम्पिरियन लूप इज ग्रेटर देन ए विच इज द रेडियस ऑफ इनर कोर एंड लेस देन बी विच इज radius of outer wire। इसका मतलब they are just telling you if you take R greater than A and less than B, so they are actually telling you that ये जो आपने इनर कोर लिया है उसी को एनक्लोज करो। That's it। रेडियस ऑफ एम्पिरियन लूप अगर A और B के बीच में है, इसका मतलब यू आर एनक्लोजिंग विच करंट ओनली थ्रू the, do you remember Ampere's law? Ampere's law याद है? याद है Ampere's law? No, I don't think so। Wait a minute, don't worry if you don't remember। कोई बात नहीं, we'll revise। हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर था, राइट। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, हमें एक पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। हमने उस पॉइंट से वायर का डिस्टेंस को रेडियस मान के एक लूप ड्रॉ कर लिया। गुड, देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ V bar dot dl bar was equal to mu zero current enclosed over loop। इसको सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग दिस you get mu zero by 4 pi 2 I by r। हम अभी वापस डिराइव नहीं करेंगे, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, करेक्ट, राइट। ये केस और ये केस इज द सेम। व्हाई इज द सेम? सिर्फ यहाँ पे वायर को आप क्रॉस सेक्शन से देख रहे हो, मतलब आप वायर को सब कट कर रहे हो और इसके ऊपर से देख रहे हो। वायर इज कमिंग टुवर्ड्स यू, करंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। गुड। तो बोलते हैं ना कि देखने वाले की नजर पे डिपेंड करता है। दिस इज व्हाट इट इज। यू आर लुकिंग डायरेक्टली अबव द वायर, सो यू लुकिंग डायरेक्टली अबव द वायर। ओके, गुड। तो ये जो बाहर का लूप है दिस इज दिस लूप। ओके, गुड। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? हो गया, क्वेश्चन खत्म। यू सी, दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन। तो इन केस 1 एम्पेरियन लूप का रेडियस r है, ये जो अंदर का कोर है उसका रेडियस आपने लिया है a। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, हमने एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग b ऑलरेडी फाइंड किया है। b इज mu 0 by 4 pi 2 I by
R, where R is radius of Amperian loop, where R is radius of Amperian loop, or which in this case is between A and B. खत्म. Part 1 done. यही आंसर होगा. This is something, yes, कोई लिखा है म्यू 0 I by 2 pi r. Done. समझा? Sure. हमने सिर्फ अंदर के करंट को क्यों लिया? क्योंकि आप क्या बोलते हो, करंट एंक्लोज. कौन सा करंट एंक्लोज है? कोर का. क्योंकि एम्पिरियन लूप कहाँ है? कोर के बाहर है. आउटर सिलेंडर के बाहर है क्या? नहीं. तो आउटर सिलेंडर लेंगे क्या? नहीं. सो दिस इज द आंसर. केस नंबर 2, बी लेस देन आर. अच्छा ठीक है, दोनों का डायरेक्शन भी पूछा है. व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? कंसीडर द वायर टू बी हेल्ड इन योर right hand with thumb outstretched and fingers curled. Okay, thumb gives you direction of current, then curled fingers give direction of magnetic field. So what will be direction of magnetic field? Along the loop. So direction is along the loop. So direction of B is along the loop. Along the loop. क्वेश्चन नंबर 1 खत्म. पार्ट 2 0. पार्ट 2 में क्या बोला है? B इज लेस देन R, मतलब R इज ग्रेटर देन B. इसका मतलब ये है, अंदर एक कोर था जिसमें से करंट टुवर्ड्स यू आ रहा है. उसके इसका रेडियस कितना लिया आपने? A. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रेडियस ऑफ दिस इज A. So this was the core of coaxial cable with radius A. Then you have a cylindrical covering conductor again. Then इसका जो radius है, what is the radius of this? कितना बोला इसका radius? Radius B. Correct? Then you imagine Amperian loop. पहले Amperian loop कहाँ बोला था? दोनों के बीच में. ये दिखाया भी उन्होंने. डॉटेड लाइन हियर इज एम्पिरियन लूप फर्स्ट केस, डॉटेड लाइन आउटसाइड इज एम्पिरियन लूप सेकंड केस. तो इन सेकंड केस एम्पिरियन लूप दैट यू आर ड्राइंग विल बी समवेयर ओवर हियर. व्हाट इज द रेडियस? R, राइट? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? 0. व्हाई 0? बिकॉज यू नो, यू ओनली टोल्ड मी. अभी करंट एंक्लोज्ड. ओके, इंटीग्रल v bar dot dl bar is equal to mu 0 करंट enclosed. कोर का जो करंट है, बट करंट थ्रू द कोर IC is I and current through the outer cylinder is minus I. Minus I क्यों? One is coming out, another is going in. और ऊपर से बोला इक्वल मैग्नीट्यूड के करंट थे, राइट? So what is I minus I? 0. So current enclosed will be 0. So here in this case, current enclosed is equal to current through core plus current through outer cylinder. But current through core and current through outer cylinder are equal in magnitude, but opposite in direction. And opposite in direction होने की वजह से current through the core can be taken to be plus I and current through outer cylinder can be taken to be minus I. And therefore total current enclosed is I minus I, that is 0, and therefore integration v bar dot dl bar is 0, and therefore B is 0, right? तो जितना डिफिकल्ट दिख रहा है उतना इजी क्वेश्चन है. ओरल नथिंग. पहले केस में ओनली करंट एंक्लोज इज करंट ऑफ थ्रू द कोर, राइट?
देन यहाँ पे सिर्फ करंट एनक्लोज था I, मतलब दिस वाज I थ्रू द कोर विच वी हैव टेकन प्लस I, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे प्लस, हो गया क्वेश्चन खत्म। पार्ट टू में जीरो, I एंड माइनस I, करंट ही जीरो है, एनक्लोज करंट जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इज दिस क्लियर? श्योर? 100%? ओके ठीक है, लेट मी चेक नाउ। मैं एक काम करता हूं, ये एक कोर, देन वन मोर cylindrical coaxial part, then I will put one more over here. Good. Okay, current through them is the same, मतलब I फिर minus I फिर plus I, inside is I then minus I then plus I. What if I measure magnetic field here, what will be the value? The magnetic field mu 0 by 4 pi 2I by R, where R is the radius of the Ampérian loop. What if I measure here magnetic field, current enclosed? How much is current enclosed? जीरो। क्यों जीरो? यहां से करंट आ रहा था बाहर की तरफ I, यहां पे जा रहा है अंदर की तरफ माइनस I, तो व्हाट इज आंसर? जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इनर कोर एंड द आउटर कोर दे कैंसल आउट ईच अदर, तो जीरो, मतलब करंट एनक्लोज इज जीरो, तो फील्ड इज जीरो। व्हाट इफ आई टेक हियर यही आएगा, वाई? बिकॉज अंदर के दोनों कैंसिल कर दिया, बचा सिर्फ आउटर, करेक्ट? इज दिस क्लियर? व्हाट इफ आई मेक दिस करंट हियर एज 2I इंस्टेड ऑफ I? 4, मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। गुड, so this is how you are supposed to solve such questions. Okay, so let us revise once again basic ideas and how to use those concepts in problem solving. If you remember Ampere's law, it tells you integration over closed path line integral b bar dot dl bar equal to mu 0 into current enclosed. If you remember basic steps, first step is to imagine Amperian loop. Second step is to find out b bar dot dl bar for each length element. पहले एक Amperian loop लोगे, फिर लूप को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करोगे, अज्यूम करोगे, फिर हर एक एलिमेंट के लिए बी बार डॉट डीएल बार फाइंड करोगे, करेक्ट? ऐसा ही करते हो, फिर हर एक पे इंटीग्रेशन करोगे और देन यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू म्यू इनटू म्यू 0 इनटू करंट एनक्लोज्ड। हमने इसका पहला एप्लीकेशन देखा था, हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक पॉइंट P है, इसमें करंट है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। थंब gives the direction of current, curved finger gives the direction of magnetic field. The magnetic field at point P, which is at a distance of R, perpendicular distance of R from the wire, is given by, कैसे सॉल्व किया था बता देता हूँ, ये स्टेप्स याद रहेंगे तो आगे समझ में आएगा। और ये इस केस का मैग्नेटिक फील्ड हमने एक और मेथड से भी फाइंड किया था, बाय इंटीग्रेटिंग। आइडिया वाज दिस कि सबसे पहले आप इस लूप को, एम्पीरियन लूप को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करो एंड देन फाइंड आउट बी बार डॉट डीएल बार फॉर ईच, सो इट इज बी डीएल कॉस ऑफ थीटा। बट एज यू नो डीएल बार और बी बार दोनों आ जाते हैं सेम डायरेक्शन में। कैसे? क्योंकि डीएल तो मैंने ही लिया ना ऐसा, और बी राइट हैंड थंब रूल, तो ये कर्ल्ड फिंगर्स का डायरेक्शन देता है आपको बी का डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब एंगल 0, मतलब दिस इज
बी डी एल। लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल गया बी डी एल का इंटीग्रेशन, चार्ज एंक्लोज, चार्ज करंट एंक्लोज इनटू म्यू जीरो। करंट कितना था इसमें, आई था, करेक्ट, गुड। देन B was constant everywhere at the location of this loop, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रल dl, okay, so this is line integral dl mu 0 into I। ऐसे सारे dl 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 आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, circumference of this loop which is nothing but 2 pi r equal to mu 0। इसको आप लिखते हो म्यू 0 बाय 2 पाई, 2 की जगह पे 4 और ऊपर 2 एडजस्ट कर लिया, मिल गया। यहां तक समझा। अभी कोएक्सियल केबल में व्हाट इज डिफरेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन दिस केस एंड द फर्स्ट केस ऑफ योर एग्जांपल। यू हैव दिस एज इनर वायर, okay, then you have another outer wire, outer coaxial wire। तो आपके पास और एक outer coaxial wire है, तो this is outer hollow coaxial wire, करेक्ट। यही केस है। आपको बोला है इसका जो रेडियस है वो है b और अंदर का जो कोर है उसका रेडियस है a, और आपको पहला कंडीशन दिया था r, मतलब रेडियस ऑफ एम्पेरियन लूप r इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, मतलब कहां आएगा वो, समवेयर ओवर हियर, करेक्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट केस एंड दिस केस, नथिंग, क्योंकि एम्पेरियन लूप में यहाँ पे करंट इज I, एम्पेरियन लूप के इनसाइड हियर करंट इज आल्सो I, so why should answer vary, it should be the same, clear, पक्का। then अब अगले बार सेकेंड केस दे आर टेलिंग यू, एक काम करो, ये एम्पेरियन लूप जो है इसका जो रेडियस है वो आप ग्रेटर देन b ले लो। ग्रेटर देन b मतलब ग्रेटर देन नहीं होगा ही, होगा, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट अंदर का तो इंक्लूड हो ही गया। तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर का वायर का अगर करंट ऐसा है तो बाहर का जो हॉलो सिलेंडर पे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसका करंट का डायरेक्शन उन्होंने बोला है अपोजिट। ये पूरा का पूरा हॉलो सिलेंडर, कितना करंट आए, अंदर के कितना करंट आए, लेकिन एक है कमिंग टूवर्ड्स यू, मतलब गोइंग डाउन इफ यू सी लाइक दिस, and the other one is going in the opposite direction। एक करंट प्लस आए, दूसरा करंट, how much is current enclosed, you see प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली, since this is 0 b is 0, but look अगर ये 0 तो b anyways will become 0, this is 0, this is 0, this is 0, anything by 0 is again खत्म, तो b is 0। Is this clear now? Pakka? Good. Then, next question. A solenoid of length 25 centimeter has inner radius of 1 centimeter and is made up of 250 turns of copper wire. For a current of 3 ampere in it, what will be the magnitude of magnetic field inside, not near one end, inside the solenoid? So according to the given data, you have length of the solenoid which is 25 centimeter. I will convert this here itself into SI unit. Radius is 1 centimeter, which is 10 power minus 2 meter. It is made up of 250 turns. Okay, current through the windings of the solenoid is 3 ampere. You are supposed to find out what is magnetic field B inside, and of course
I am confident enough that you remember B was equal to mu 0 small n. What was small n? Number of turns per unit length into I. So अगर आपको इतना याद है तो mu 0 small n is capital N by L, number of turns per unit length. Mu 0 की वैल्यू is 4 pi into 10 power minus 7. N is 250. Length is 10 power minus 2 and current is 3. Current is 3. Okay, इसको easily solve कैसे करते हैं? Because this is quite simple. Wait. 250 into 4,000. 250 into 4,000. Okay. 1000 और ये 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 4 और ये ऊपर जाके प्लस होगा 10 पावर माइनस 4 और 10 पावर प्लस 2, 10 पावर माइनस 2. मतलब ये तो है कि 10 पावर माइनस 2. वापस देख लो 250 into 4 is 1000. 1000 तो 10 पावर 3, ये 10 पावर माइनस 7 मतलब 10 पावर माइनस 4 और ये ऊपर आके प्लस होगा तो 10 पावर माइनस 2. बचा कितना? 3 pi. Do you know 3 into pi is how much? 1 into pi is 3.14. Into 2 is 6.28. Into 3 is 9.42. So 9.42 into 10 power minus 2 Tesla. So that is what you should be getting. ये आंसर मिलना चाहिए. So this is what you must have. But calculation you have to check, okay? So of course length अगर आप नहीं लिखोगे तो आंसर will be अच्छा. I will not do unnecessary मेहनत. I will keep it simple. क्या रह गया? Length कितना था? 25 into 10 power minus 2. तो 25 रह गया यहाँ पे. करेक्ट. बाकी तो सब लिखा है, 10 पावर माइनस 2 भी लिखा है. हाँ, तो अभी क्या करेंगे? ये ऊपर का करके रखा है कैलकुलेशन, तो व्हाई टू ट्रबल योरसेल्फ, जस्ट हियर 25. देन एज आई टोल्ड यू, डू नॉट ट्रबल योरसेल्फ अ लॉट. तो एक काम करो, यहां तक सब सही था? श्योर श्योर श्योर. यस. तो व्हाट यू कैन डू इज मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस 2 और अगेन इसको 10 पावर माइनस 4. क्या किया हमने? सिर्फ 10 पावर प्लस 2 और 10 पावर माइनस 2 एडजस्ट किया. ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है 10 पावर प्लस 2 इज 100, 1 जा एंड 4 जा. मैंने अभी बोला आपको 37 पॉइंट समथिंग समथिंग, 9 4 इज 36. 0.4 into 4 16, 168 and 36. So this is 37.68 into 10 power minus 4 Tesla. ओके. तो लेंथ 25 नहीं लिखोगे तो आंसर गलत मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate the value of magnetic field at a distance of 2 centimeter from a very long straight wire carrying a current of 5 ampere. Again a very simple question. आपको बताया है value of R 2 centimeter मतलब 2 into 10 power minus 2 meter from a very long straight wire carrying a current of 5 ampere. You are supposed to find out magnetic induction, and of course now you remember formula because we have went through this formula thrice today. 3 बार. Mu 0 by 4 pi 2I by R. So done. This is how you are supposed to solve. B equal to mu 0 by 4 pi is 10 power minus 7. 2 into current is 5 मतलब 10 और नीचे R कितना है? 2 into 10 power minus 2. कैंसल ये 5 और ये ऊपर जाके प्लस 2 10 पावर माइनस 5 टेस्ला. है क्या? है नहीं. तो व्हाट वेंट रॉन्ग? कौन सा? हाँ, म्यू 0 बाय 4 पाई 2I बाय R. फॉर्मूला करेक्ट है. करेक्ट है फॉर्मूला.
Yes, doesn't matter. Wait a minute. You are telling me कि यहाँ पे म्यू जीरो की जगह पे आपको हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है 4.10 पर माइनस 7, तो 4.45 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? हाँ, तो मैंने क्या लिखा फिर? वही लिखा. ओके, तो what went wrong, that is what I am asking you. Mu 0 by 4 by 10 power minus 7, nothing wrong. Nothing wrong. Correct. 2I by R. 2I by R. ये फॉर्मूला था क्या? Was this the formula? Did you see the formula? Yes. यही है. Good. यही है ना? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? What is the problem? That 2 है. Yes. I कितना है? 5. ओके, गुड. R कितना था? 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर को 2 to 10 power minus 2 लिखा. राइट. कैंसल होगा? यस. ये ऊपर जाएगा? यस. तो व्हाट इज रॉन्ग? देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन योर बुक, सो दैट इज रॉन्ग. So this is what you should be getting. Okay. Okay, so by the way, इस क्वेश्चन में ये जो WB पर AM है, this is Weber. Weber is SI unit of flux, magnetic flux, ampere meter. How do you get this unit? It is a very simple thing. अभी आपने मुझे बताया कि B is equal to mu 0 N by L into I. Correct? Then what will be mu 0? It will be BL by Ni. Right? B, magnetic field, you measure in Tesla, right? But do you know Tesla का exact? Tesla can be also written in some other form. तो बताता हूँ. This is Tesla. This is meter. Ampere. Number is number. Okay? ये जो Tesla है, this is nothing but Weber per meter square. कैसे आया बताता हूँ. Do you remember magnetic flux is B into A? B bar dot A bar. Electric flux is E bar dot A bar. Magnetic flux is B bar dot A bar. What is B? Flux by A. But flux is in Weber per meter square. इसी को आप बोलते हो 1 टेस्ला. Right? तो by the way, ये जो B है magnetic field, it can be either in Tesla or you can write down Weber per meter square. Number is a number, no unit. Length is meter. This is ampere. Cancel. Weber per ampere meter. Weber per ampere meter. So this is how it comes. Then next question. Now a good question. 2 wires shown in the figure are connected in a series circuit. They are not in series. These 2 wires are in a series circuit. ये नहीं तो बोला कि इन दोनों को सीरीज में लगा देते हैं, इसको उठा के इसके ऊपर. No, they are in a series circuit. Right? एक सर्किट है, फिर दूसरा सर्किट है. उस सर्किट में एक वायर है और पहले सर्किट में एक वायर है. This is what they are telling you. The same amount of current 10 ampere passes through both, but in opposite direction. Opposite directions. Separation between the 2 wires is 8 mm. Now the problem is 8 mm कौन सा, ये या फिर ये? आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ लो तब समझेगा कि कौन सा बोल रहे हो. So separation is 8 mm. The length AB is 22 centimeter. So this length, ये वायर नंबर 1 है, तो मैं वायर नंबर 1 के लेंथ को 22 मानूंगा. That is S. So S equal to L1 equal to 22. Obtain the direction and magnitude of magnetic field due to current in the wire 2. Wire 2 में current है. They are asking you find out what is magnetic field. Okay, direction and magnitude both. Okay, obtain the direction and magnitude of the magnetic field due to current in wire 2 on the section AB. आ गया section AB, मतलब distance ये जो है 8 mm. This is between AB and wire 2 and not the other section. ये नहीं, नीचे का A is कितना 8 mm. Good. Also obtain
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वायर 1। तो डू यू रिमेम्बर, जब 2 में से करंट पास होगा तो 2 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। 2 की मैग्नेटिक फील्ड में पहला वायर है, पहले वायर में भी करंट है, तो इस पे फोर्स लगेगा। मैंने बताया था फोर्स इज बिल साइन थीटा। बी किसका? 2 का। करंट किसमें? 1 में। लेंथ किसका? 1 का। तो ये याद रखना। तो लेट अस put down one by one what is given to us. First of all, current through 1 is 10 ampere and current through 2 is also 10 ampere. So I1 and I2 are equal in magnitude. Direction opposite है, पता है हमको. We can see it is going up and here it is going down. तो ठीक है. Separation between the two wires you denote by A और R, आपकी मर्जी. आपको A बोलना है A बोलो, आपको R बोलना है R बोलो। 8 mm मतलब 10 power minus 3 मीटर। 8 into 10 power minus 3 मीटर। क्लियर है यहां तक? 8 mm 8 into 10 power minus 3 मीटर। लेंथ किसका? लेंथ पहली वायर का। तो लेंथ ऑफ वायर 1 इज 22 सेंटीमीटर, मतलब 22 into 10 power minus 2 मीटर। ओके। Obtain the direction and magnitude of the magnetic field due to current in wire 2. Obtain. Find what is B2. Find what is B2. What is the magnetic field due to current in the wire 2. मतलब B2 फाइंड करना है, B1 नहीं। वैसे क्या फर्क पड़ने वाला है? ओनली डायरेक्शन। याद है कि आपको A के लिए B 8 mm पे है, B के लिए A मतलब सेकेंड वायर के लिए फर्स्ट वायर 8 mm पे, फर्स्ट के लिए सेकेंड 8 mm पे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, μ0 by 4 pi 2I by A। तो क्या फर्क पड़ेगा? दोनों में करंट भी तो सेम ही है, सो ओनली डिफरेंस विल बी डायरेक्शन। तो कोई फर्क नहीं पड़ता B2 या B1, वी नो दैट। ओके, देन आगे बोला है also obtain मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी ये डू यू रिमेम्बर, ये चैप्टर स्टार्ट करते टाइम ही मैंने बताया था, लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वायर 1। वायर 1 पे फोर्स कौन लगाएगा? वायर 2। तो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम 2 to 1 बिकॉज दिस वायर विल बी पुश्ड अवे। So second wire is pushing the first wire away. So the direction will be second to first. हो गया, आधा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया। So let us find out. They're asking you force acting on 1 due to field of 2. F12 not F21 because अगर आपने F21 लिख दिया तो answers will be wrong. Okay, then formula, not formula, formulae, plural. Number 1, B2. What is B2? μ0 by 4 pi 2I by A. अभी यूज किया था, वही सिर्फ R की जगह पे A है। नंबर 2 क्या चाहिए? F12. Force on 1 due to 2 is magnetic field of 2. Current in 1 and length of 1 and sine of theta, but that is anyways 90. Sin 90 is 1. कैसे 90? इसका थंब रूल उल्टा, क्योंकि करंट हियर इज डाउन। करेक्ट, करंट हियर इज डाउन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पे जनरेट होगा, कहां पे? एट द लोकेशन ऑफ 1, इट इज गोइंग इनसाइड। इमेजिन, तो थोड़ा सा इमेजिन रखना पड़ेगा आपको। ऐसा अगर होता तो मैग्नेटिक फील्ड विल गो लाइक दिस, और 2 पे आते आते मतलब फर्स्ट पे आते आते इट विल बी कमिंग आउट, राइट। लेकिन करंट कैसा है? उल्टा है। उल्टा है मतलब व्हाट आई विल डू इज दिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग क्लॉकवाइज 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 एंड एट द लोकेशन ऑफ 2 1 इट विल गो इनसाइड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस, राइट। तो हमको डायरेक्शन तो पता लग गया। अभी आपको फाइंड करना था, ये देखो ये है डायरेक्शन, दिस इज इनसाइड। वेयर इज करंट? करंट इज गोइंग अप, इनसाइड एंड अप। व्हाट इज एंगल? 90। तो इसलिए वहां पे आप अगर लिखोगे
तो ठीक, नहीं लिखोगे डायरेक्टली तो भी चलेगा. सो एनीवेज, सॉल्यूशन. डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? ओके. सो नंबर 1, B2, व्हाट इज दिस? 4 pi into 10 power minus 7 upon 4 pi, मतलब 10 power minus 7. वेरी गुड. 2 into I, what was I? 10. 10 ही बोला है ना, 10 बताया था. 10. What is distance? 8 mm. 8 into 10 power minus 3. 1 by 4 is 0.25. ये ऊपर जाएगा प्लस 10 पावर प्लस 4 एंड माइनस 7 10 पावर माइनस 3 टेस्ला. ये हो गया आपका B2. डायरेक्शन बता दो. बता दिया आपने डायरेक्शन? क्रॉस. डायरेक्शन बताना है मतलब एट द लोकेशन ऑफ 1. थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे. अकॉर्डिंग टू राइट हैंड thumb rule, the direction of B2 at the location of AB, section of wire 1 था, AB is going inside, है ना. Direction of B2 is going inside, मतलब is inside the plane of paper, plane of board, plane of screen, is inside the plane of whatever you are using. So anyways, it's just inside the plane. ये हो गया आपका पहला पार्ट खत्म. सेकेंड पार्ट में आपको चाहिए था फोर्स. F किस पे फोर्स? 1 पे. किसकी वजह से? 2 की. इज इक्वल टू किसका मैग्नेटिक फील्ड? 2 का. किस में करंट? 1 में. किसका लेंथ? 1. साइन ऑफ थीटा. तो B2 अभी फाइंड किया आपने 0.25. 0.25. I don't like to write down this decimal. -5. I1 is 10. दोनों में करंट सेम था. लेंथ इज नहीं डिस्टेंस 8 था. डिस्टेंस 8 था, लेंथ था 22 सेंटीमीटर. 22 into 10 power minus 2, और ये साइन ऑफ थीटा इज 1. Since theta is 90, then easy calculation. Wait, -7 plus 1, 10 power minus 6. 10 power minus 6. 25 into 22 आना चाहिए. सिंपल है. What? 550. 25 into 10 is 250. Into 10 is 250, मतलब 25 into 20 is 500. आपको 22 टाइम्स करना था, आपने 20 टाइम्स किया. ऊपर का 2 टाइम्स. 25 into 2 is 50. 500 plus 50. 550 into 10 power minus 6. यूनिट क्या दो इसको मैं? क्या है? फोर्स. फोर्स क्या होता है? न्यूटन. तो ये आ गया आपका फोर्स का वैल्यू. अभी डायरेक्शन भी पूछा है. इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम, अनलाइक करंट्स है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट्स है, दे विल रिपेल. सो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1, राइट? That's it. So this is what you should be getting, right? 5.5 into 10 power minus 4, 550 10 power minus 6, that is correct. And 0.25 into 10 power minus 3, that is also correct. So that's it for today.